Hello students, welcome once again to the web classes. So today we are going to start a new chapter in the 12th Commerce English medium. The name of chapter is Analysis of Financial Statement. That is the most easiest chapter in the account part 2, we can say. So let's start without wasting any further time. So analysis of financial statement, first of all let's understand the theory concept of it. Now what is financial statement? So financial statement means the statement which shows the financial position of company. Financial statement includes balance sheet, P&L account, cash flow. Okay, these are called financial statement. So mainly it includes balance sheet and P&L statement. Okay, now the meaning of financial statement, what is? So the objective of preparing the financial statement is predetermined. Financial statements represent information and result, but after preparation of financial statement they are rearranged in a such a way that they become comparable. The different stakeholder take their decisions on the basis of financial statement which are prepared in a comparable form. This entire process is known as analysis of financial statement. So what is the meaning of it? So meaning can be written from this inverted comma. After preparation of financial statement they are rearranged in a such a way that they become comparable. The different stakeholder take their decisions on the basis of financial statement which are prepared in a comparable form. This process is known as analysis. Is that clear? So hopefully you are clear with the analysis of financial statement. Now types of analysis. So types of analysis on the basis of stakeholders, external analysis and internal analysis. देखो एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी के बाहर के व्यक्ति जो एनालिसिस करते हैं उसे कहते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस, लाइक गवर्नमेंट है, क्रेडिटर्स हैं, वो सारी चीज़ें. इंटरनल एनालिसिस लाइक ओनर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो लोग एनालिसिस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनालिसिस. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस. हॉरिजॉन्टल तो अगर लाइन ऐसे सीधी स्ट्रेट है, मतलब जैसे कि 2012 का डेटा है, 2013 का डेटा है, 2014 का डेटा है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में अगर डेटा दिया हुआ है और आप उसका कंपैरिजन कर रहे हो, उसकी एनालिसिस कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. वर्टिकल एनालिसिस. वर्टिकल एनालिसिस का मतलब मान लो कि 2012 का डेटा है तो पूरे 2012 के डेटा की एनालिसिस उसे कहेंगे हम वर्टिकल एनालिसिस. इज दैट क्लियर? And on the basis of duration, long term analysis and short term analysis. The analysis is done by taking a 1 year time period or quarter result, and the result of that analysis can be useful for the short term period, that is called short term analysis. And if the analysis is done by taking the financial statements of more than 2 year or more, we can say more than 5 or 6 years, on the basis of that if we are doing the analysis, that is called long term analysis. Let's have the detailed study of it. Okay, I'm not going to explain in detail. Okay, on the basis of stakeholder, external and internal, I already explained. When the external parties of business do analysis, that is called external analysis. When the internal parties like management, employees and owners are doing analysis, that is called internal analysis. Horizontal analysis. So horizontal analysis means the analysis of financial statement horizontal way, like 2013 to 17 data is given, 1 2 3 4 5 years, so 5 years of data is given, so that is called horizontal analysis. You are going this way, this is called horizontal analysis. Is that clear? Now vertical analysis means analysis of 1 year statement, analysis of 1 year or 1 quarter statement from top to bottom, like income statement, balance sheet and cash flow. This is a vertical analysis. Okay, so doing the analysis of 1 year, that is vertical analysis, and if we are doing the analysis of more than 1 year, that is horizontal analysis. Now on the basis of duration, if the analysis is done for the less than 12 months, that is short term, more than 12 months, that is long term. Long term analysis. Many stakeholders like debenture holder, financial institution, potential investor undertake long term analysis of financial statement before investing their fund in the corporate form of business. For this analysis, information of more than 1 year is needed. Under this analysis, these stakeholders determine the present and the future long term solvency
profitability, liquidity and efficiency of the borrowers. Is that clear? Generally the last line is given that meant the definition. In brief, under long-term analysis, the evaluation of above mentioned dimension is done with the help of financial statement of more than 1 year. So if you are taking more than 1 year's financial statement for the analysis, that is long-term analysis. Is that clear? And short-term analysis, as you know, the kind of analysis which is short term, and that is done to find out the short term solvency of the business. Okay, so I'm not going into deeper, just learn the head points of it and clear the concept of it, that would be fine. Now what is the objectives of financial analysis? The first objective is evaluation of earning capacity. How much earning capacity of business is, that can be determined by doing analysis. Okay, एफिशिएंसी एवोल्यूशन कि कंपनी कितने अच्छे से काम कर रही है, हाउ गुड परफॉर्मेंस इज गिवन बाय द कंपनी, दैट कैन बी मेजर बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सॉल्वेंसी एवोल्यूशन, आप जानते हो रेशियो एनालिसिस भी सॉल्वेंसी के लिए यूज होता है, तो रेशियो इज ऑल्सो अ टूल फॉर एनालिसिस. ओके, सो सॉल्वेंसी एवोल्यूशन वी कैन डू विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. ना एवोल्यूशन ऑफ मैनेजरियल एफिशिएंसी, बट ऑब्वियस है कि मैनेजरियल एफिशिएंसी भी कहाँ से पता चलेगा, आपके बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट से. एंड प्लानिंग फॉर बजट, इफ यू वांट टू प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और द प्लानिंग टू हैव अ न्यू प्लांट, देन बजट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फॉर डूइंग कंपैरेटिव स्टडी एंड सिंप्लिसिटी टू अंडरस्टैंड अकाउंट. आपको सिर्फ हेड पॉइंट्स लर्न करने हैं, डिटेल में लर्न नहीं करना है. डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ थियरी आर नॉट एक्सपेक्टेड इन एग्जाम, नॉट एक्सपेक्टेड आई एम सेइंग. हाँ, मतलब शायद आ सकता है, अभी तक तो नहीं आया है. ना यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेट एनालिसिस, यूज क्या है, तो आप प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, लिक्विडिटी फाइंड कर सकते हो, सॉल्वेंसी फाइंड कर सकते हो, एफिशिएंसी चेक कर सकते हो. दीज आर द यूजेस. मतलब जो आपके एडवांटेजेस थे ऑलमोस्ट वही वाले पॉइंट जो है यूजेस भी हैं. ओके, नाउ डिविडेंड डिसीजन, मैनेजमेंट को अगर डिविडेंड डिसीजन लेना है कि कितना डिविडेंड दिया जाएगा, कहाँ से पता चलेगा, बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट से. दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या खुद का एक्सपांसन करना है, कहाँ से पता चलेगा, बैलेंस शीट एंड पीएनएल स्टेटमेंट के एनालिसिस से. ओके, फॉर लैंडिंग डिसीजन, पैसा देना है किसी और कंपनी को, देना नहीं देना. फॉर बोरोइंग डिसीजन, पैसा लेना है कि नहीं लेना. तो ये सारे डिसीजन जो है दैट कैन बी टेकन बाय डूइंग द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो यूजर्स मीन्स कौन कौन यूज़ करता है, तो कौन कौन यूज़ करता है, क्रेडिटर यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट यूज़ करते हैं, ओनर यूज़ करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, कस्टमर्स कभी कभी यूज़ करते हैं कि अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे. कस्टमर को ज़्यादा नहीं पड़ी होती है, कस्टमर सिर्फ ये देखता है कि प्रोडक्ट नया लॉन्च होने वाला है या नहीं. ओके, तो फॉर इंटरनल पर्पज, एक्सटर्नल पर्पज, शॉर्ट टर्म डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजन, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. सो दीज आर द यूजर्स. ओके, कौन कौन यूज़ कर रहा है ना. जैसे गवर्नमेंट है, मान लो कि इसमें दिया नहीं है गवर्नमेंट, बट है. गवर्नमेंट एनालाइज क्यों करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ये देखने के लिए भैया इस साल कितना टैक्स मिलेगा, कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही. समझ में आ रहा है. लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन ये है हिस्टोरिकल डेटा. बट अब वैसे भैया जो साल आया नहीं है उसका आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना तो सकते नहीं हो. तो ये इसकी लिमिटेशन है कि डेटा जो है हिस्टोरिकल होती है, एक साल बीत गया उसका डेटा हमारे पास है. बट अब वैसे अकाउंट है भाई, फ्यूचर का तो होगा नहीं. ठीक है. इग्नोरेंस ऑफ इन्फ्लेशन, देखो एक बार अकाउंट बन जाने के बाद ना फिर इन्फ्लेशन अगर हो रहा है तो हम कोई वापस से अकाउंट बनाने नहीं बैठेंगे, है ना. तो इन्फ्लेशन को यहाँ पे सिंपली इग्नोर किया जाता है. एब्सेंस ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो इग्नोर किए जाते हैं. जैसे कि मान लो कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से फाइनेंशियल पोजीशन डाउन हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, इसका मतलब ये है कि भाई सिचुएशन खराब है, वो क्वालिटी है एक जो बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं की जा सकती. मान लो कि कोई अच्छा मैनेजर है या फिर जनरल मैनेजर है, सीईओ है, वो छोड़ करके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहा है, तो वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, वो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता. तो ये इसका एक लिमिटेशन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप ऐसी बातें नहीं लिख सकते या नहीं बता सकते. बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट ऑब्वियसली आपने जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा आप एनालिसिस भी वैसा करोगे. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट झोल झमेला वाला है तो एनालिसिस भी झोल झमेला वाला ही होगा. हाँ. पर्सनल ओपिनियन, तो हर एक व्यक्ति अपने एनालिसिस से खुद का ओपिनियन देता है.
तो हर एक के ओपिनियन डिफरेंट होने के चांसेस होते हैं. देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजंस. विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई महल है या कोई घर है, उसकी खिड़की से झांक के बताना है कि भाई घर में सब बराबर है या नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग, है ना. तो विंडो ड्रेसिंग मतलब समझ में आया कि अब बस आप ओवरव्यू दे देते हो, हाँ, देख लिया, खिड़की से झांक लिया, ठीक है, और आप बता रहे हो कि नहीं भाई कंपनी इज डूइंग गुड और नॉट. एक्चुअल आप कंपनी में हो नहीं, जस्ट यू आर डूइंग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीन्स यू आर डूइंग एनालिसिस ऑफ P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड यू आर गिविंग योर ओपिनियन. दैट इज नॉट गुड. Okay, that is not perfect, है ना. So financial analysis is just a window dressing, किसी की खिड़की से झांक के बताने जैसा है. Now discloses only symptoms of problem. देखो ये वाला क्या है, discloses only symptoms of problem means financial analysis provide information of causes of the problem but does not provide the solution. मतलब कि हमको कॉज पता चलता है कि भाई ये है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन बट अब वैसे सॉल्यूशन उसमें कहाँ से मिलेगा. सॉल्यूशन जो है वो फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट है, सॉल्यूशन फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट है, और प्रॉब्लम जो है वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है. तो प्रॉब्लम तो आपको पता चल जाएगा लेकिन सॉल्यूशन का पता नहीं चलेगा. दैट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ इट. ओके, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट. सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस एक ही होते हैं. अगर आप नहीं करना चाहते सिग्निफिकेंस, इट्स गुड, ठीक है, इंपॉर्टेंस कर सकते हो, ठीक है. कंपैरिजन के लिए अच्छा है इंट्रा फर्म कंपैरिजन. इंट्रा फर्म कंपैरिजन मतलब हमारे ही फर्म है, जैसे कि ये है 2020 का कंपेयर करो 2019 के साथ और पता लगाओ पिछले साल के कंपैरिजन में वी आर डूइंग गुड और बैड. ओके, दैट इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन. इंटर फर्म कंपैरिजन लाइक कंपैरिजन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज विथ टाटा ग्रुप, ठीक है. तो दो अलग अलग कंपनी का जब कंपैरिजन करते हो दैट इज कॉल्ड इंटर फर्म कंपैरिजन. खुद की कंपनी के अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन मींस इंट्रा फर्म कंपैरिजन. सो ये डेफिनेशन 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है. व्हाट इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन, व्हाट इज इंटर फर्म कंपैरिजन. इंडिकेट ट्रेंड्स, बट ऑब्वियस है अगर आप 10-5 साल का डेटा लोगे और दिख रहा है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, एक घटा फिर बढ़ रहा है, मतलब क्या है भाई कंपनी का ट्रेंड है, गजब, कौन सा अप ट्रेंड है ना. नाउ द यूजफुल टू क्रेडिटर, बट ऑब्वियसली क्रेडिटर को यूजफुल ही होगा. हाँ, फाइनेंशियल पोजीशन अगर तगड़ी है, बहुत गजब दिख रहा है कि प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है, तो क्रेडिटर सोचेगा भैया उधार देना है कि नहीं देना है. इफ़ यू वांट टू लैंड मनी और इफ़ यू वांट टू गिव क्रेडिट फैसिलिटी फॉर द परचेज गुड देन दे कैन, वो दे सकते हैं, है ना. तो यूजफुल फॉर द क्रेडिटर. सिंपल एंड कंपेरेबल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. तो जैसे अगर आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट दे दिया जाए और P&L अकाउंट दे दिया जाए तो आपको उससे कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप उसे डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, जैसे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओ या कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओ, जो कि हम सीखने वाले हैं, या उसका रेशियो एनालिसिस करो, तब आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन क्या कहना चाहती है. ठीक है. नाउ स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कितने स्टेज हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के. तो पहला स्टेज है कि रीअरेंज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छी तरह से, फिर कंपेयर करना और बाद में अपना ओपिनियन देना. ये 3 है. तो सिर्फ इसके हेड पॉइंट्स लर्न कर लो, दैट्स ओके, है ना. क्या, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीअरेंज करना, फिर उनको कंपेयर करना और लास्ट में अपना ओपिनियन देना, मतलब इंटरप्रिटेशन. ओके. नाउ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो 2 चीज़ें हैं, हम यहाँ इस चैप्टर में 2 चीज़ें देखने वाले हैं. एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और कॉमन साइज स्टेटमेंट. कॉमन साइज स्टेटमेंट आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे. सॉरी, कंपैरेटिव और कॉमन दोनों ही हम बाद वाले लेक्चर में देखेंगे. तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है. आपका काम क्या है, थियरी को एक बार लर्न करना. देखो ये चैप्टर 6 मार्क का है, जिसमें से 4 मार्क्स का एक सम एक्सपेक्टेड है एग्जाम में. तो सम तो आप कर लोगे. तो थियरी 2 मार्क्स की बची, उसके लिए जो भी आप थियरी लर्न कर रहे हो तो बी प्रिसाइज. इफ़ यू आर, जैसे इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशन, तो सिर्फ हेड पॉइंट. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.